Hi guys, hope all of you are doing great. I welcome you to one more session of Sprint X. जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग क्या करें Sprint X पे We are discussing important questions and how to attempt them. ठीक है guys, already हम लोग क्या कर चुके हैं? We have completed, yes guys, question on life processes, questions on how do organisms reproduce, heredity and evolution का. This is the second session. We have already done first session and we will also be doing our environment. ठीक है, तो जिन बच्चों ने ये सब चीजें नहीं देखी हैं, लाइफ प्रोसेस, ठीक है, और हमारा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर विच इज द फेवरेट, राइट, तो यस गाइस डू गो एंड वॉच देम आल्सो. बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ट्रस्ट मी, मैं बता रहा हूं. अगर आपने पूरे साल भर भी नहीं पढ़ा है, you just follow these things, you will definitely be able to score 70% and above. 70% and above, बस इससे आ जाएगा. ठीक है, वेरी गुड. तो मूविंग फॉरवर्ड ऑन दिस, तो टुडे वी आर गोना डू हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का सेकंड चैप्टर, सेकंड पार्ट, जिसमें गाइस वी विल बी डिस्कसिंग मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस और सेक्स डिटरमिनेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा. ठीक है, सर ने आपको एक दे दिया कि सेक्स डिटरमिनेशन विल डेफिनेटली कम इन दी, मतलब 99%. ठीक है, 1% थोड़ा रखते हैं. पता चला आया नहीं पेपर में, सर को आके लात मारी आपने, अले ये सल तो कह रहे थे आएगा, आया नहीं तो बेटा दिस माइट कम. ठीक है, in the first session we have already done heredity and monohybrid cross. Today we are going to do dihybrid cross and sex determination. इस पे questions discuss करेंगे. ठीक है ना. See, we are dealing with things in a very extensive manner ताकि आपको बहुत ज्यादा help हो सके. Okay. तो guys, this is the schedule. आज हम पहुंच चुके हैं 12 दिसंबर को. One more session will come on 15 December. Then we will be done. Same thing with I guess chemistry, English, mathematics, and of course we have physics also. This is our SST schedule. Yes guys, so how many of you have not yet subscribed? Yes guys, subscribe to this channel. It's an amazing channel, trust me. Along with teaching, हम लोग आपको motivate भी रखते हैं. ठीक है, तो there are many things which are gonna come up over here, so do not forget to subscribe to the channel and like and share the video. Okay, so moving forward, I had given this homework. What is the phenotype and genotypic ratio of F1 and F2 generation of monohybrid cross? ठीक है, देखें ये कहां है. दिस इज प्रशांत तिवारी. ही सेड 3 phenotype, tallness and yeah, 3:1 is the phenotypic ratio, 1:2:1 is the genotypic ratio. Very good बेटा प्रशांत तिवारी. Then there is जयंती गर्ग 10th D. थैंक यू बेटा जयंती गर्ग 10th D. Oh my God, धर्मेंद्र भरद्वाज, ये तो बहुत ही दिल्ली भरद्वाज लग रहे हैं. Then we have इशिता सिंह, इन्हें भी आंसर करा. और Archita Das, thank you beta Archita Das, session was very amazing. Thank you beta, you guys are amazing. Then yes, it's a process. Change does take time. It's a process and change takes time. Guys, मुझे मैसेज आया था. ठीक है, एक तो कुमार साहिल है, ठीक है, हमारे फ्रेंड है कुमार साहिल. वो कह रहे हैं कि सर बोर्ड एग्जाम आ रहा है, हम है बहुत परेशान. He wrote to me, he's like, sir, board exams are coming and I'm very pareshan. There's one more friend of mine, Ashwin Mathpati. Ashwin, ठीक है, मैथपति, इनके तो नेम में ही मैथ्स है. ठीक है, इनके तो नेम में ही मैथ्स है. तो अश्विन वाज लाइक कि सर आई स्कोर्ड लेस मार्क इन बोर्ड्स. आई स्कोर्ड लेस मार्क्स इन बोर्ड्स, प्री बोर्ड, सॉरी नॉट बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स, है ना. I am very disappointed. My parents are also angry with me. I'm not feeling good about it. Yes, and if I'm not wrong, Kumar Sahil और Ashwin Mathpati की तरह, I guess 80-90% students are feeling the same thing. Yes or no? मुझे बताओ, comment box में बताओ. If this is helpful, guys, please do let me know. Are you also feeling the same thing like Kumar Sahil and Ashwin Mathpati? ठीक है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे पता चले कि वेदर माई अजम्पशंस आर राइट और रॉन्ग. बट अकॉर्डिंग टू मी 80-90% स्टूडेंट्स आर फीलिंग दिस कि उनके प्री बोर्ड में नंबर कम आए हैं. ठीक है, टीचर्स आर नॉट हैप्पी विद देम. टीचर्स से कि आपका पोटेंशियल बहुत ज्यादा, बट आप अच्छा नहीं कर रहे हो. पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी विद देम. यू गाइस आर ट्राइंग योर 100%, बट यू दैट इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू रिजल्ट्स. ये सब चीजें हो रही हैं. तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. गाइस, चैट तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, बट कमेंट बॉक्स मुझे बताना. ठीक है, तो फॉर दोज पीपल आई हैव, फॉर पीपल लाइक साहिल एंड यू नो अश्विन, गाइस, this is my thing. I want to tell you, pre-boards are difficult. Pre-boards are difficult. ठीक है, as I told you, it's a process.
ठीक है. क्लास 10th एग्जाम इज नॉट वन एग्जाम गाइस, इट्स अ प्रोसेस. इट चेंजेस यू विद टाइम, इट चेंजेस यू विद टाइम. ट्रस्ट मी गाइस, जब आपने फर्स्ट टर्म लिखा होगा यू वर अ डिफरेंट पर्सन. When you have written the second term, you were a different person. Now you have written a pre-board, you are a different person. Now when you write another pre-board, you will be a different person. Are you getting my point? So what I'm trying to say is कि you are evolving. जो साहिल क्लास 10 स्टार्ट होने के पहले था, अब वो वाला साहिल नहीं रहा. अब ये और भी स्ट्रॉन्ग साहिल बन चुका है. ठीक है. ये जो अश्विनी था, है ना, ये अश्विनी पहले वाला अश्विनी नहीं रहा. अभी तक आते आते ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है. इसको पता है कि मतलब यू नो people are not with him, है ना, his parents are not happy, but still he is fighting. Are you getting my point? The fighter spirits, can you see the fighter spirit over there in Ashwini and Sahil? And that fighter is there in each one of you. That fighter is there in each one of you. Guys, trust me, ठीक है. Why do parents tell us? Why do teachers are disappointed? They are not disappointed, beta. They just want to push you. वो disappointed नहीं है. They just expect, you know, they want you to push you little harder. ऐसे नहीं कि वो आपसे दुखी है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. दे हैव देयर ओन थिंग्स टू बी दुखी अबाउट. योर टीचर्स विल हैव देयर ओन फैमिली प्रॉब्लम्स, योर पेरेंट्स विल हैव देयर ओन वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स. ठीक है. बट व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इज दे वांट गुड फॉर यू. उनको वो बस आपका भला चाहते हैं. तो दैट इज व्हाई दे आर, यू नो, लिटिल पुशिंग यू लिटिल. बट ट्रस्ट मी, इफ यू गेट लेस मार्क्स आल्सो इट वोंट मैटर. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर और गोइंग फॉरवर्ड 3-4 साल बाद ये मैटर ही नहीं करेगा कि आपके क्लास 10th में कितने नंबर आए थे. ठीक है. दिस यू वुड बी सीइंग ऑल द टीचर्स सेइंग दिस, है ना. बट व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू गेट फ्रॉम हियर इज कि हाउ स्ट्रांग यू गाइस हैव बिकम. ठीक है. हाउ मच योर मस्कल्स हैव डेवलप्ड. ठीक है. ये है आपके मस्कल्स. ठीक है. कि आपके मस्कल्स कितने डेवलप हुए. ये जो मस्कल्स हैं, how strong you guys have become in the process. That is the best thing, guys. And trust me, as I've been telling you, pre-boards are very difficult. Teachers make it difficult. They do not give you marks ताकि आप लोग एकदम लास्ट में जाके रिलैक्स ना हो जाओ. वो लास्ट में आपको बहुत ज्यादा पुश करना चाहते हैं. ठीक है. एंड एज हैव बीन टेलिंग यू, आप बस मेहनत करते रहो. डू नॉट थिंक अबाउट रिजल्ट. डू नॉट थिंक कि मेरा 95% आएगा कि नहीं आएगा, मेरा 80% आएगा कि नहीं आएगा, मेरा 70 नहीं. अब वो मत सोचो कि कितना मार्क्स आएगा. आप बस ये सोचो आपको कल क्या पढ़ना है. आप ये सोचो परसों क्या पढ़ना है. आप बस ये सोचो कि टुडे इज सैटरडे, अच्छा व्हाट शुड आई स्टडी ऑन संडे, व्हाट आई विल बी स्टडीइंग ऑन मंडे, व्हाट आई विल बी स्टडीइंग ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. दैट्स इट. प्लान फॉर 1 वीक. डू नॉट थिंक अबाउट एग्जाम. ट्रस्ट मी गाइस, आप आंख बंद करोगे, अगले टाइम पे आपका एग्जाम वाला डेट आ जाएगा. ट्रस्ट मी ऑन दिस. यू जस्ट क्लोज योर आईज एंड नेक्स्ट डे देयर विल बी एग्जाम डे. तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि वो आ जाएगा यार, एग्जाम डे अपने आप आ जाएगा, रिजल्ट डे भी अपने आप आ जाएगा. आपको उसके लिए वरी नहीं करना. व्हाट यू हैव टू वरी अबाउट इज कि कल क्या करना है. व्हाट यू हैव टू वरी अबाउट इज कल क्या करना है. बस स्टे 1 day at a time. ओके. बी द वॉरियर एंड फेस 1 day at a time. जब भी आपको लगे ना लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, whenever you're feeling कि life is very difficult, यार हो नहीं रहा है, I suggest you all guys just 1 day at a time and present at a time. अभी क्या कर रहे हो उस पर फोकस करो, बाकी छोड़ दो. बोलो भैया God is there with me. ठीक है. I hope this helps guys. We love you a lot. Trust me, I love you a lot. My heart is for you guys. You can mail me like Kumar did, you know, Ashwini did. You can mail me. ठीक है. तो what I want you to understand is guys, we love you unconditionally. चाहे आपके प्री बोर्ड्स में नंबर कम आए, बोर्ड्स में नंबर कम आए, चाहे आप फेल हो जाओ, कुछ भी हो जाए, you can write to me and you can expect a response from me. I will be there for you. We love you a lot. ठीक है. Unconditional love from our side, guys. See, there are many factors. This one exam cannot decide what you're gonna be, right? Cool. So on this note, shall we move forward? Very good. Because I thought I should address this. बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं बोर्ड्स के चक्कर में. कुछ नहीं यार, बोर्ड्स को लात मारेंगे, ऐसे करके लात मारेंगे. ठीक है. बहुत तेज लात मारेंगे, बोर्ड को गिरा देंगे. ठीक है. तो guys, so let's begin the question. This is the first question, 1 marker for you guys, 1 minute, and we will do it in 30 seconds. So yeah, what is a phenotype? अरे यार ये तो बहुत, देख रहे हो ऐसे टुच्चे क्वेश्चन आते हैं, आप कहोगे थू. Like this, okay? External appearances of an organism, genetic constitution of an organism, both A and B and none of these. बताओ इससे इजी सवाल कभी जिंदगी में आया? What is a phenotype? It is then physical appearance, or P for phenotype, P for physical appearance, or external appearance of the body, right? Very good, sir. Yes, physical appearance of a body. Then what is the genetic makeup? That is genotype. What is that? That is genotype. Moving forward on the next one. Again, 1 mark का 30 seconds हम करेंगे क्योंकि हम स्मार्ट बच्चे. What is autosome and what is sex chromosome? बताओ.
What is an autosome? Guys, autosomes are the chromosomes which decide the somatic features or normal physical features. Sex chromosomes decide the sex of an individual. है ना? तो how will you write the first 22 pair of chromosome are called autosomes. The first 22 pair of chromosomes are called as autosomes. They are responsible for features or characters of the organism. They are responsible for somatic characters. Somatic मतलब bodily, ठीक है? They are responsible for what, guys? Somatic characters. Sex chromosome, the 23rd pair. The 23rd pair of chromosome is called as the sex chromosome. Why? Because it determines the sex of an individual. अब छोड़ना नहीं है, लिखना है. There is a male. E है हमारा मेलवा, E है हमारे फीमेलवा. Yes. And तो female has XX chromosomes, male has X and Y chromosomes. Guys, please do write this. ठीक है? XX and XY जरूर लिखना. ठीक है? देखो, एक है नॉर्मल बच्चा, एक है स्मार्ट बच्चा. जो यहां तक लिखेगा और ये लिखेगा वो है नॉर्मल बच्चा. जो ये लिखेगा वो है स्मार्ट बच्चा. और आप क्या हो? स्मार्ट बच्चे. नॉर्मल तो हम है नहीं, क्योंकि यू आर अमृतसर स्टूडेंट. आई नो, बट आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट. आप अमृतसर के स्टूडेंट नहीं हो. यू आर यू, बट थोड़ा सा ले लेता हूँ क्रेडिट. ठीक है, कोई बात नहीं, माफ कर दो मुझे, बट यार थोड़ा सा लूंगा मैं. तो यू आर माय स्टूडेंट, तो यू विल ड्रॉ दिस. अगर मजा आए ना, अगर और फन करना है ना, इफ यू फील लाइक हैविंग फन, ठीक है, ये भी बना देना. मजाक नहीं कर रहा. यू टीचर विल बी लाइक, वाह ये तो बहुत ही क्रिएटिव बच्चा है. मतलब सी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग मेल एंड फीमेल, व्हाट यू कैन डू इज सी, आई जस्ट टीच यू दिस डायग्राम. ठीक है, देखो, तो आई जस्ट टीच यू दिस. देखो ऐसे कर, 1 2 3 4. ठीक है, देन 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, फिर एक सर्कल बनाया और एक ऐसे स्माइली बना दिया. Are you getting my point? Then you can do this. Similarly, female, 1 2 3 4. Then 1 2. Yes, M लिख दिया. Then again 1 2, like this. Instead of writing male and female, write this and say this is X Y. This is X X. You write here female. You write here male. यार हैव फन विद एग्जाम ना यार. एग्जाम क्या, एग्जाम की तो पिटाई कर देंगे, हमारे पास आ गया. हैव फन विद एग्जाम गाइस. ठीक है, कोई डरने वरने वाली बात नहीं है, हम मजे करेंगे एग्जाम के साथ. ठीक है, तो गाइस दिस इज फन. Will you not give me extra marks? See how beautifully I have drawn. Will you not? I will write also. ऐसा नहीं कि I will not write. तो will you not give me extra marks? Tell me in the comment box. Will you not give me an extra marks? Yeah, you will say, oh my God, कितना cute बच्चा है, इसको दो यार. Yeah, obviously, if unless until you are a sadist, आपकी जिंदगी तबाह है, आप हो एक sadist आदमी, मतलब आप हो हिटलर के ताता परदाता, तो then you will cut marks. But if you are a nice person, if you are a good human being, you will definitely say, अरे यार कितना बढ़िया बच्चा है 10वीं क्लास का, इतना बढ़िया डायग्राम बनाता है, right? So on this note, guys, subscribe to the channel if you like the drawings. Okay, I'll start doing art classes also. ठीक है, क्या कहते हो? मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आर्ट क्लासेस और ये क्या बना सकते हो. ये will you be able to draw this male and female? And subscribe to the channel, guys. Vedantu 11, sorry, yes guys, Vedantu 9th and 10th तो join subscribe करो. आपको NCERT 11th and 12th पता है? Vedantu का there's a channel that is NCERT 11th and 12th. Do you guys know about this? Vedantu NCERT 11th and 12th. Do you guys know about this? No? इसमें we teach the NCERT का syllabus. जो 11th and 12th में बच्चे जो साइंस लेने जाएंगे, तो guys you can join this. It is the बड़ा भाई of Vedantu 9th and 10th. ठीक है, and guess करो वहां पे कौन बायो पढ़ाता है, वहां पे कौन बायो पढ़ाता है. वहां पे जाके देखना कौन बायो पढ़ाता है और सब्सक्राइब करना उस चैनल को भी. मूविंग फॉरवर्ड, यस, अगेन गाइस a 1 mark का 1 minute and we will do in 30 seconds. ठीक है, तो या तो गाइस यहां पे है 2 pea plantwa are there. 2 pea plantwa are there. One round and yellow seed. Oh, okay. Ground and green seedwa. Okay. Other one wrinkled and yellow seedwa. Oh my God. Produce F1 progeny having round and yellow seed. Ote. When F1 plants are self, the F2 progeny will have the following combination of the characters. Guys, very good question. देखो हम क्या लेते थे, राउंड एंड येलो और रिंकल्ड एंड ग्रीन. अब इन्होंने क्या करा बेटा, दे हैव changed it. They have said green and, yes guys,
राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड एंड येलो. बट गाइस इफ यू सी F1 प्रोजेनी में F1 और ऑल राउंड एंड येलो, इफ यू कैन सी F1 सेम ही बना है. तो गाइस व्हेन वी डू F2 द सेम थिंग विल नॉट कम और व्हाट, सेम थिंग ही आएगा ना. देखो चाहे आप कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई को ब्रीड करो, you will get same thing, capital R small r capital Y small y. Similarly if you are similarly if you are breeding capital R small y small r capital Y, again if you are breeding these two you will get capital R small r capital Y small y. अब आप इसको सेल्फिंग करोगे तो again guys what are you gonna get, you're gonna get a dihybrid cross F2 वाला. तो what is there, 9:3:3:1 आएगा. क्योंकि देखो F1 में तो यही होता है ना हमेशा डाइहाइब्रिड क्रॉस में. यस गाइस आंसर विल बी 9:3:3:1. यस द आंसर इज 9:3:3:1. हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, डू लेट मी नो गाइस, अगर समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है. मेंडल प्रपोज दैट एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय, मेंडल अंकल बोले किससे कंट्रोल होता है. 1 मार्क का 1 मिनट आई विल डू इन 30 सेकंड्स. 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम. बेटा देखो व्हेन मेंडल वाज डूइंग हिज स्टडीज तब हमें डीएनए के बारे में नहीं पता था, वी डिड नॉट नो अबाउट क्रोमोसोम्स, है ना. तो मेंडल सेड कुछ तो है, मेंडल सेड कुछ तो है जो पेयर में एग्जिस्ट करता है और जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है. मेंडल कॉल्ड दिस कुछ एज फैक्टर्स. तो दिस कुछ which exist in pair helps in transfer of characters from one generation to another, he called that कुछ as factors. ठीक है, तो मेंडल ने जब कहा था वो कहा था फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन, ड्रॉ अ लीनियर डायग्राम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. अगेन देखो सेम सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, सेम चीज हम बनाएंगे. एक मेलवा एक मेल बनाएंगे, ठीक है, स्माइली बनाते हैं हम स्माइली बनाएंगे. ठीक है, 1 मेल 1 फीमेल, राइट. मेल में वी हैव XY, फीमेल में वी हैव XX. Male will form 2 types of gamete X, Y. Female will form 2 types of gamete X, है ना बच्चे. तो then X can pair with X like these two, or X can pair with Y. ठीक है, similarly again this X can pair with this X, this X, Y can pair with this Y. तो guys ये हो सकता है ना बेटा. तो देयर इज अ 50-50 पॉसिबिलिटी. तो यस गाइस, तो आप कहोगे ये दोनों हो गए फीमेल, ये दोनों हो गए मेल. तो बस हो तो गया. ड्रॉ लीनियर डायग्राम ऑफ सेक्स. लीनियर मतलब मेरे बोर्ड में जगह नहीं थी तो मैंने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, बट यू शुड बी एबल टू ड्रॉ दिस गाइस. इट्स अ 2 मार्कर, यू शुड राइट इन 2 to 3. लाइक गाइस सी, टीचर ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस यू, टीचर आपका पढ़ेगा भी नहीं, वो बस आपका डायग्राम देखेगा. क्या हाँ ये डायग्राम इसने बनाया है, मतलब ऐसा बना सकते हो, या फिर लिख दो मेल, लिख दो फीमेल, है ना बेटा. तो ऐसा करना है. ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सी ये देखो कितना बोरिंग है, छी, मतलब दिस इज गुड ओनली, बट यार सी इट लुक्स बोरिंग यार बोरिंग नहीं है बच्चे, बताओ, है ना. ये देखो कितना बलिया लिखा है, सर ने क्या बलिया बनाया है. तो यू कैन डू एनी ऑफ दीज, बट आई वुड सजेस्ट आप कुछ भी कर सकते हो बेटा. योर थिंग. ये 22 क्या है, 22 ऑटोसोम्स प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम, है ना बेटा ऐसे. तो वैसे ही हो सकता है. देन वन मोर थिंग गाइस, डू यू गाइस नो अबाउट वेदांतो प्रो सब्सक्रिप्शन. आपको वेदांतो प्रो के बारे में पता है गाइस? वेदांतो प्रो में क्या होता है, वी प्रॉमिस यू गारंटीड स्कोर इंप्रूवमेंट. गाइस आपको पता है ना कि आफ्टर योर क्लास 10th you are supposed to choose your stream, that is whether you're going to take science, whether you're going to take commerce, or whether you're going to take arts. आपको पता है ना, आपको चूज करना पड़ता है. ठीक है, and this choice is based on the marks which you get over here in 10th. So बेटा देखो, this streams, that is science, commerce और arts, this is going to decide your future, कि आप करियर में क्या करने वाले हो. अगर आप साइंस लोगे तो आप इंजीनियर या डॉक्टर बन सकते हो, बट अगर आप ये कॉमर्स लोगे तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो. आर्ट्स लोगे तो यू कैन बी अ म्यूजिशियन, साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, यू नो, एनीथिंग, राइट. तो बट आई विल टेल यू, जो साइंस होते हैं ना वो ये भी कर सकते हैं, दे कैन डू दिस ऑल्सो, बट दीज पीपल कैन नॉट, यू कैन नॉट गो बैकवर्ड. समझ पा रहे हो? देखो चार्टर्ड आगे आप ऐसे, साइंस कैन डू CA मतलब कॉमर्स एंड आर्ट्स, सिमिलरली कॉमर्स पर्सन कैन डू आर्ट्स, बट
once you choose this you cannot go back like this, है ना? तो that is the thing, that is why people choose science, है ना? बट क्योंकि ना साइंस में थोड़ा साइंटिफिक टेम्पर बन जाता है, तो बट व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि यू नो होता क्या है, क्लास 10th के बाद बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता. मतलब सी फॉर एग्जांपल आई वांट साइंस, तो आई विल नॉट बी एबल टू गेट साइंस स्ट्रीम इफ आई एम नॉट यू नो आई हैव नॉट गॉट अ गुड मार्क्स. सिमिलरली कॉमर्स नहीं मिलता कहीं बच्चों को, तो दे हैव टू चेंज द स्कूल्स, तो उसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा टूट जाता है. तो what I want all of you to understand is, guys, please, this is a very important stage of your life, क्योंकि this will pretty much decide what you're gonna do for your life long. तो if you are feeling कि थोड़ा सा कमी रह गई है मेरी प्रिपरेशन पे, तो guys, that is where the Vedantu Pro subscription comes in. If you need special attention from end, this is where the Vedantu subscription comes in, and we promise you guaranteed score improvement, guys. Trust me. अगर आपको लगता है कि आपको एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है, तो यही आपके लिए कोर्स है. तो definitely opt for this. What do you get over here? Unlimited live classes and high level of quizzes. मतलब unlimited live classes मतलब like me, Abhishek sir, you know, Anubha ma'am, Harsh sir, Ankana ma'am, Shweta ma'am. So you can have a direct one-to-one discussion with the teacher और आप पढ़ सकते हो हमारे साथ वहाँ पे. मतलब one-on-one आप पढ़ सकते हो, आप हमसे डाउट पूछ सकते हो. Along with me, there'll be other 4-5 teachers who will be there to solve your doubts. Then you get to compete with the students throughout world. चलो world, ओमान, दुबई के बच्चे आते हैं, but if इंडिया में भी गाइस होता क्या है, मैं जब स्कूल में था मैं क्या करता था, मेरा कंपीटिंग सर्कल क्या होता था, बस स्कूल के 10 बच्चे, क्लास 10th में देयर विल बी 10 किड्स, आई यूज्ड टू कंपीट विद देम ओनली, है ना? होता है ना, जैसे कि आप भी देखोगे हर किसी का ना फ्रेंड सर्कल होता है, टॉप 5 बच्चे आपस में कंपीट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट 5 to 10 वाले रैंक में वो अलग कंपीट करते हैं, फिर 10 to 20 वाले अलग कंपीट करते हैं, अपने जोन में रहते हैं. होता है कि नहीं होता? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स अगर ऐसा होता है तो, कि होता क्या है कि जो 5 टॉप के 5 बच्चे आपस में कंपीट करते हैं, तो एवरीवन हैज देयर ओन सर्कल विद विच हुम दे कंपीट. उनको पता है यार बाकियों को तो मैं बीट कर ही दूंगा, या फिर मेरा उनसे कंपटीशन है ही नहीं. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज गाइस, यू नीड टू ब्रेक दैट बबल. अभी वर्ल्ड बहुत बड़ा, मतलब अभी द यू नो द environment is so interconnected because of internet, so you should not limit your bubble and you should compete with the entire India level पे, at least world level पे तो करना ही चाहिए, but अभी India level पे तो आप लोग आओ, क्योंकि IITs डॉक्टर में if you want to do IIT or get into a medical college, you will be competing with the students of the entire India. So that's why I need you to compete with that, and Vedantu provides you with that. आपके local coaching center ऐसा provide नहीं कर पाएगा. Interactive replays, live quizzes and leaderboard. जैसे कि आपको मेंटी पसंद है ना गाइस, हर क्लास में हमारे मेंटी होता है और एक लीडर बोर्ड निकलता है जिसमें देयर इज अ स्टूडेंट दिस थिंग. यस, एंड गाइज यू कैन डाउनलोड द हैंड रिटन नोट्स ऑफ द टीचर ने जो भी पढ़ाया है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो. एंड यस गाइज, व्हाट यू कैन डू इज, यस, डाउट सॉल्विंग, टेस्ट एंड असाइनमेंट. एक्चुअली गाइज अभी इट इज ऑल अबाउट सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चन. तो जितने क्वेश्चन डालोगे उतने ज्यादा आप स्मार्ट होते जाओगे. यू विल हैव माइक्रो कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, फ्री क्रैश कोर्सेज. माइक्रो कोर्सेज मतलब बेटा वो वाले कोर्सेज जिसमें जैसे कि आपको बस एक चैप्टर पढ़ना है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पढ़ना है, तो यू कैन जस्ट स्टडी दैट चैप्टर. यू वांट टू स्टडी जस्ट मैग्नेटिक इफेक्ट, तो यू कैन स्टडी दैट ओनली. यू वांट टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू कैन स्टडी दैट ओनली. मतलब आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब जो आपको पढ़ना है वो बस चैप्टर पढ़ो डिटेल में, बाकी सब चैप्टर थोड़ा जल्दी फास्ट पढ़ना चाहते हो वो भी कर सकते हो. एंड यू कैन सी देयर आर क्रैश कोर्सेज आल्सो हैपनिंग. These crash courses, guys, trust me, very well planned and they will definitely boost your score. And finally, you can use this code to get extra 20% discount. AR Pro, that's my code. You can use this to get extra 20% discount. Moving forward on this, yes, guys. So there's a 1 month and a 3 month courses you can take. Right now, you can take a 1 month course. अगर आपको लगता है कि दिसंबर आ गया है, आपको बस 1 महीने की जरूरत है, but I would suggest कि आप ले सकते हो, बट हमारी क्लासेस मार्च तक भी रहती है, तो यू कैन थिंक ऑफ दिस ऑल्सो. अगर आपका कंस्ट्रेंट नहीं है, फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा नहीं है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. बट इफ यू फील यू हैव सम फाइनेंशियल बर्डन, यू कैन गो फॉर दिस. बट आपको लगता है ये भी नहीं हो पाता, गाइस डू नॉट वरी, वी आर देयर एट यूट्यूब. यूट्यूब पे क्या होता है, यू नीड टू पे एक्स्ट्रा अटेंशन और एक्स्ट्रा डिसिप्लिन होना रहता है. यहाँ पे क्या होता है, रोज आपकी क्लास होगी ही होगी, तो आपके यू नो इफ यू पे समथिंग यू टेक इट वेरी सीरियसली. यूट्यूब पे फ्री क्लास होती है तो आप सीरियसली नहीं लेते हैं बहुत सारे बच्चे, बट या तो दैट्स व्हाट डिसिप्लिन ब्रिंग्स इन. So guys, it costs you around 11 to 9 rupees. So I would say very beneficial for per day. That is very amazing. Yes guys. So yeah, you can look for it. अगर आपको लगता है extra attention चाहिए तो definitely go for it. I would highly recommend it. अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी लग रही है तो प्लीज गो फॉर इट. बट हाँ, अगर आपको लगता है नहीं यार
यूट्यूब से मैं मैनेज कर लूंगा या कर लूंगी, दैट इज ऑन यू गाइज, यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट, है ना, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए. तो आई विल रिकमेंड दिस अगर आपको थोड़ा वीक लग रहा है, नहीं तो ठीक है, यूट्यूब पे यू कैन मैनेज. मूविंग फॉरवर्ड ऑन दिस, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. So guys, it's a 2 marker. Again, we will do it in 2 to 3 minutes, and the time which we are gonna give is 1 minute. So what is there, guys? Give appropriate term for the following. The trait which can be express itself in next generation. What's the trait? Come on, guys. जो express हो सकता है, कौन सा trait है वो? That's a dominant trait. The trait in organism that an organism has due to inheritance. Yes guys, inherited trait. Okay, acquired trait and inherited trait. मतलब वो वाला trait जो organism में आता है because of inherited, वो कहता है inherited trait. हमने acquired traits भी पढ़े ना, वो inherit नहीं हो पाते. Acquired traits are the ones which do not get transferred, right? For example, learning a guitar, learning a, you know, क्या कहते हैं, गिटार लर्निंग, बॉडी बिल्डिंग और बाइसाइक्लिंग, वो पास नहीं होता. Whereas height, eye color, these are what inherited trait. Learning a guitar, swimming are what acquired trait, जो आप एक लाइफ में सीखते हो. Why did Mendel choose a pea plant for his experiment? Very easy question guys, हमने देख रखा है. 3 marks का था, 3 to 5 minutes, but we will do in 2 minutes. हमने देखा था क्यों चूज करा pea plant, क्योंकि there were many contrasting traits which he could study. Many offsprings were produced. They have a shorter lifespan. They are easy to self-pollinate and cross-pollinate, है ना बेटा? They are easy to maintain also. खाना वाना फर्टिलाइजर वगैरह भी कम चाहिए. Life span is very short, है ना? They have many characters. Small, easy to grow. और भी है guys, self fertilization हो सकता है. Number of offsprings are many, high number of offsprings are produced. So that is, these are all character. But 3 marks का था तो we will write 3 points. But I would suggest 5 point लिख दो. 3 marks का भी हो तभी 5 point लिख दो. Yes, explain the term monohybrid cross, dihybrid cross, monohybrid ratio and dihybrid ratio. अब देखो monohybrid cross और dihybrid cross तो आपको आता होगा. Ratio is guys, we are talking about phenotypic and genotypic ratio. जब I'm telling you monohybrid ratio, मतलब क्या है? Ratio कौन से हमने पढ़े? 2 ही पढ़े हैं, phenotypic and genotypic. तो दोनों लिख दो आप ratio. See, this would have been a bummer. अगर आपको पता नहीं है monohybrid ratio क्या है, dihybrid ratio क्या है, आप कुछ लिख नहीं पाओगे. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हमें क्या पता है, 2 ही तो हमें रेशियो पता है, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, तो दोनों लिख दो, मोनो और डाइहाइब्रिड के, है ना बेटा? तो ऐसे लिख दो. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द वन व्हेन वी स्टडी ट्रांसफर ऑफ ओनली वन कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर. Dihybrid cross is the one when we study transfer of 2 characters. For example, when I'm studying transfer of only height, this is only 1 character. That is monohybrid cross. But when I'm studying transfer of 2 characters, that is shape and color of a pea pod. देख लो, 2 यहां पे बस मैं एक, क्या इस प्लांट का शेप और कलर नहीं होगा? ये जो मैं प्लांट यहां पे स्टडी कर रहा हूं उसका भी शेप और कलर होगा, बट मैं इस केस में उसको नेग्लेक्ट कर रहा हूं. आई एम नॉट लुकिंग एट इट, आई एम जस्ट स्टडीइंग दिस. सिमिलरली जब मैं शेप और कलर पढ़ रहा हूं तो क्या उसका हाइट नहीं होगा, बट मैं उसको निग्लेक्ट कर रहा हूं. आई एम जस्ट लुकिंग एट 2 कैरेक्टर्स. थर्ड कैरेक्टर को मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं. ठीक है, एग्जैक्टली गाइस. Is that cross when we made study inheritance of only single pair of genes? Dihybrid cross we study inheritance of 2 pair of genes. Monohybrid ratio है ना बेटा? Obtained, yes, what is it? The physical appearances. Phenotypic ratio is 3:1. Genotypic ratio is 1:2:1. Then dihybrid ratio में guys आप लिख सकते हो the physical appearance is usually 9:3:3:1 and the genotypic ratio is very complex, so that is why आप उसको नहीं लिख रहे हो, है ना बेटा? ऐसे लिखते हो, फिर जीनोटिपिक रेशियो लिख के छोड़ सकते हो इसको, है ना? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. वेरी गुड. अब इसमें बैठ के ना इसको बनाने मत लग जाना डाइहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, 3 मार्क्स का डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे. दैट मोमेंट व्हेन टीचर सेज यू आर गुड स्टूडेंट बट योर फ्रेंड्स आर स्पॉइलिंग यू. ऐसा होता है. आई रिमेंबर मेरी मैडम भी कहती थी अमृत बहुत बढ़िया बच्चा है, बट आजकल इसकी हरकतें ना अच्छी नहीं है, ये दोस्ती इसके सही नहीं है. ऐसा होता है गाइस आप लोगों के साथ. यस, कैसा होता है? यू आर गुड स्टूडेंट बट योर फ्रेंड्स आर स्माइलिंग. या ओके. सो गाइस एक्सप्लेन सेक्स डिटरमिनेशन. देख रहे हो, सेक्स डिटरमिनेशन करे पड़े हम. तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 5 मार्क्स का है. अब 10 मिनट और 3 मिनट में हम लिखेंगे. सेम चीज गाइस, सेम चीज लिखनी है. देखो पहले तो डायग्राम तो बनाना ही बनाना है. ठीक है, देख लो, ये डायग्राम सीख लो मेरे बच्चों. ठीक है, ये डायग्राम सीख लो. ठीक है, डायग्राम सीख लो और वो बना देना. ठीक है, देन
ये लिख सकते हो। अब देखो 5 मार्क्स आ गए, आप क्या करोगे? बस डायग्राम बना के छोड़ दोगे? नहीं, आपने डायग्राम बना के कहानी, राम कहानी, रामायण सुना दो उनको। से मेल कंसिस्ट ऑफ 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज XX. मेल produces 2 types of gametes, one X having 22 plus X, one 22 plus Y. Female produces 1 type of gamete having 22 and X, है ना? The chances of a male child is 50% and chance of a female child is 50%. तो ऐसे कहानी बना के लिख सकते हो। देखो कितनी बड़ी कहानी, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा, आप पढ़ रहे हो, मैं तो नहीं पढ़ रहा, मेरे को लगता है 90% बच्चे पढ़ेंगे भी नहीं। इतना बोरिंग है। बट या what you can do is you can write the diagram, है ना बच्चे? What you can do is you can draw the diagram, है ना? और ये भी लिख सकते हो ना, देखो आप ये भी बना सकते हो इसमें, मेल फीमेल, आप यहाँ पे लिखो मेल गैमीट, यहाँ पे लिखो फीमेल गैमीट, फिर यहाँ पे लिखो जाइगोट, मतलब बी क्रिएटिव, है ना? मतलब कुछ भी लिख सकते हो, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट में XX भी हो सकता है, XY भी हो सकता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग गाइस, ठीक है? तो प्लीज डू राइट इट लाइक दिस। अरे बहुत बोलिंग है, ये पढ़ने में हमारी जान निकल जाएगी, हम नहीं पढ़ना चाहते। आप लोग पढ़ लेना, ठीक है? तो कहानी लिखनी है इस पे। तो वन मोर क्वेश्चन, 5 मार्क का, एक्सप्लेन द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट दैट शोज ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। अब इसमें क्या है, व्हाट लॉ इज टॉकिंग अबाउट? ही इज टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ independent assortment. He is talking about law of independent assortment. ठीक है बेटा, तो ये था। तो इसको कैसे पता चला हमें? डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब यहां पे आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस ड्रॉ करना है। गाइस ट्रस्ट मी, डाई हाइब्रिड क्रॉस एग्जाम में नहीं आएगा, डायहाइब्रिड क्रॉस नहीं आएगा, बट वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए वी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड यू हैव टू ड्रॉ द मेटल्स डायहाइब्रिड क्रॉस एंड यू हैव टू शो देम कि भैया देखो ये वाला था, है ना? द कैरेक्टर्स व्हिच वर नॉट प्रेजेंट इन द पेरेंट्स वर सीन, द कैरेक्टर्स लाइक इन्होंने क्या करा, प्योर, राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन को ब्रीड करा एंड दे गॉट राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो सीड्स आल्सो, सो व्हिच वर नॉट देयर इन द पेरेंट्स। सो दिस टेल्स अस कि भैया क्या कहते हैं, देखो ये वाले जो है ना, राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो, दे वर नॉट प्रेजेंट इन द पेरेंट्स। तो दिस टेल्स अस द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड इंडिपेंडेंटली। यस गाइस, आई नो, बट आप प्लीज प्रैक्टिस डायहाइब्रिड क्रॉस, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपने नहीं देखा है, मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। Guys, please, I have taught this thing in very much detail in Umang series, so please you can go and watch the sessions. सारे chapters के sessions आप देख सकते हो, है ना? And do not, yes guys, please do not be scared. बहुत ही chill exam होने वाला है। Yes, and today we have completed Mendel's and sex discrimination. Claps for yourself, क्योंकि we have completed one more chapter. हमने 3 chapter sprint में complete कर लिए हैं, R environment बचा हुआ है। Claps for yourself guys, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। I appreciate you all. You guys are doing a really hard work and amazing work guys. Keep smiling, keep rocking, and as I keep saying, I love you all, we love you all, unconditional love from our end, है ना बेटा? कभी भी लगे ना कोई आपसे प्यार नहीं करता या सब आपको गुस्सा करते रहते हैं, तो just think of us, think of me, trust me, you just think of me, trust me, I'll definitely love you, I'll give you chocolates also। आप मेरे पास आओ, आप जो चॉकलेट बोलोगे वो आपको चॉकलेट, आइसक्रीम भी खिलाएंगे आपको बहुत बढ़िया वाली। आप बैंगलोर आओ, हमसे कभी मिलो, तो आई विल डेफिनेटली बाय यू चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स, व्हाटएवर यू वांट। यस गाइस, एंड या तो डू नॉट थिंक कि कोई आपसे प्यार नहीं करता या आपको दुखी करते हैं सब, तो आई विल बी देयर फॉर यू, है ना? तो ना वो हैव यू सीन फ्रेंड्स का होता है ना, I'll be there for you, I'll be there for you guys, so don't worry about that। तो यार, तो we'll have chocolates, ice cream सब करेंगे। तो keep smiling, keep loving, and do not forget to subscribe to the channel guys, subscribe करो channel को, and there's a subscribe to the channel of Vedantu 9th and 10th, because I see 40% students जो आते हैं ना, 40 या 50%, वो सब्सक्राइब नहीं करते, बस देख के चले जाते हैं। तो सब्सक्राइब करो यार, हमें अच्छा लगता है। और कमेंट करके हमें बताओ आपको सेशन कैसा लगता है, जो भी मैंने सवाल पूछे थे बीच में उसको कमेंट करके बताओ, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, है ना? बिकॉज ऑल ऑफ यू नीड दिस गाइज, इट इज नॉट अबाउट यू ओनली, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर फीलिंग दिस डिप्रेशन, तो प्लीज डू शेयर इट विद देम। एंड या, व्हाई आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स केपेबल ऑफ शोइंग हेरिडिटी फीचर्स? वाओ। तो यार गाइस, तो बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन, इसको आंसर करना, एंड यस, आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो यस, दैट्स माय नेफ्यू, तो चिल्ला रहा है। तो यस, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन गाइस, तो ये सेकेंड पार्ट करा है हमने, फर्स्ट पार्ट भी ऑलरेडी करा, यू कैन गो एंड वॉच दिस ऑल्सो। नेक्स्ट सेशन गाइस 15 December 3 PM वी विल बी डूइंग दिस, एंड यस, एंड एज आई हैव बीन टेलिंग यू, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब
you can use the code AR Pro to get extra 20% discount on वेदांतु का प्लेटफॉर्म, है ना बेटा। डाउनलोड कर लो ऐप। गाइस वेदांतु के ऐप पे बहुत ज्यादा फ्री क्लासेस भी होती हैं, तो उसका फायदा उठाओ। देयर आर मेनी फ्री कंटेंट प्रेजेंट। एटलीस्ट ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वेदांतु का ऐप डाउनलोड करके देखो एक बार, ठीक है। देयर आर मेनी फ्री थिंग्स प्रेजेंट ओवर देयर, यू विल लव इट। देन यस, do not forget to subscribe to our channel guys, and there's one more channel as I was telling you, वेदांतु का NCERT 11th and 12th, as I've been telling you, ये बड़ा भाई है, ये वेदांतु 9th and 10th का बड़ा भाई है, ठीक है। एंड वहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग से सर हैं जो बायो पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उनसे जाके मिलना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को भी। एंड कीप स्माइलिंग गाइज, एंड आई लव यू ऑल, एंड यस, keep smiling, spread happiness, don't be tension नहीं, one day at a time guys, one day at a time, do not go further। बस ये सोचो कल क्या करना है और you will be good to go, and keep writing to us, you can write to me at amrit.raj@vedantu.com, जैसे साहिल ने लिखा, अश्विनी ने लिखा, आप भी लिख सकते हो। I will see, जो इंपॉर्टेंट होगा उसमें जरूर एड्रेस करूंगा, जैसे कि मेरे को पता लगा कि साहिल और अश्विनी के बारे में बात करनी चाहिए मुझे। तो keep smiling guys, love you all, bye bye, have a great day, take care।